हाय गाइस, कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं। टुमारो इज़ 24th of December and tomorrow is Christmas Eve, that's how. And day after tomorrow it will be Christmas 2022. Any celebration you are making it to happen, or any arrangements, anything you are doing these days, you can share it with us. Each of us will be coming to know if you share with us, and any of the readings you are doing this time, because this is wintry time, and there is a great flavor if anyone takes up any chapter, especially poems or any of the topics that you prefer to read mostly. So similarly, I have chosen to uh, explain, or rather interpretation. I will do interpretation, one of the best poems, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. I will do the interpretation in Hindi only, so that you can understand in a more meaningful way. And hereafter, once I complete the whole syllabus of class 11th, I will be doing everything in English as much as I can. In terms of explanation, I will do that with you. So let's get started. Fine. Okay. And The Voice of the Rain, Walt Whitman. Firstly, I will read out the whole poem, and then I will explain line by line, and also I will describe the literary devices for sure. That's the ornament of any of the poetry. You know that, right? Okay. And who art you? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atoms, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever, by day and night, I give life to my own origin, and make pure and beautify it, for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, regged or unregged, dully with full returns. I hope by this time you must have heard the meaning of it. The poet is who art you? Said I to the soft falling shower. The poet is curious to talk to the rainfall, to the raindrops. You perhaps have seen any time rainfall happening. I have seen, because I live in Kolkata. You must have seen. And meanwhile, if you are the poet, you have started conversing with the raindrops, with the rainfall, suddenly, all of a sudden, and then the conversation takes a bit more longer than expected, so to speak. So this is the rough idea of this poem. Now I will explain everything line by line in Hindi. And who art thou? Said I to the soft falling shower. And who art thou? और आप कौन हो? Art मतलब ARER,
दाओ मतलब यू। ये जो है, ये दोनों शब्द जो है प्राचीन युग में इनका प्रयोग होता था। मैंने पूछा आप कौन हो। किनसे किनसे पूछा मैंने? सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो बरसात हो रही थी एकदम आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज नॉट द डेलज जिसे कहते हैं, स्टॉर्म जिसे कहते हैं, वो नहीं है। ये जो है बहुत ही आराम से होने वाला क्या है? बरसात है। Which, strange to tell, gave me an answer as here translated। और मैंने पूछा बरसात से, रेन ड्रॉप से पूछा कि आप कौन हो, और बड़े स्ट्रेंज तरीके से, अद्भुत तरीके से मेरे को आंसर भी उसने किया। किसने? रेन ने। और उसको हम ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ते हैं। पोइट के हिसाब से क्या कहा, मतलब क्या सुना, रेन ने क्या कहा उन्हें, वो लिखते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बरसात ने कहा था कि मैं पोएम हूँ, कविता हूँ इस पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी की, एक्चुअली फेमिनाइन क्वालिटी है। मैं क्या हूँ? कविता हूँ। कविता इज अ वर्ड दैट इज एसोसिएटेड विद गर्ल्स फेमिनाइन एस्पेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग थी। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ये किसने कहा? ये जो आवाज थी रेन की, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं क्या हूं? अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ, कविता हूं इस अर्थ की, इस पृथ्वी की। इटर्नल आई राइज इन पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं ऊपर उठती हूं। इटर्नल मतलब सदा के लिए, वापस ना आना, हमेशा के लिए मैं ऊपर उठती हूँ, और मेरे को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। इम्पैलेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है वन थिंग दैट कैनॉट बी टच्ड। और मैं उठती हूँ ऊपर की ओर। कहाँ से? कहाँ से मैं उठती हूँ? लैंड से उठती हूँ, स्थल से मैं उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र से भी उठती हूँ। बॉटमलेस का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, वो समुद्र जिसका कोई अंत ना हो, वहाँ से, और स्थल से, ज़मीन से मैं ऊपर उठती हूँ। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। वाटर साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो आपको काफ़ी मदद हो सकती है समझने में, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन, कहाँ पे मैं उठती हूँ? ऊपर। हेवन कहाँ पे होता है? स्वर्ग कहाँ पे होता है? ऊपर की ओर, आकाश की ओर। वेंस, वैग्युली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वेंस का मतलब क्या होता है? वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। वैग्युली मतलब जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। तो मेरा जो फॉर्मेशन है, मेरा जो बनाव है वो क्लियर नहीं है। सब कुछ मिला के मैं चेंज हो जाती हूँ, मगर मैं सेम ही रहती हूँ, मगर मैं एक ही रहती हूँ। जब वाटर नीचे इवोपरेट होके ऊपर जाती है तो क्या होता है? वो भी जो ऊपर गैस बन के जाती है वो तो एक्चुअली में वाटर ही है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा स्टेट चेंज हो जाता है, मगर मेरा जो पार्टिकल है, आप कह सकते हो असलियत जो है, जो रूट है वो वाटर का ही है। मतलब वो और कुछ नहीं बन जाती, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? ओके। आई डिसेंड टू लैव द ड्राउट्स, एटम इज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। मैं फिर क्या करती हूँ? ऊपर जाके, आसमान में जाके नीचे फिर गिरती हूँ। फॉल डाउन, डिसेंड का मतलब क्या होता है? फॉल डाउन। और नीचे गिरने के बाद वहाँ पे जो भी ड्राउट्स होते हैं, सूखे जो जगह होते हैं, उन्हें कहते हैं ड्राउट प्रोन एरियाज। या महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, राजस्थान में देख सकते हो। तो वहाँ पे मैं बरसती हूँ, और द टाइनिस्ट पार्टिकल्स, एटम इसका मतलब होता है द टाइनिस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जो मतलब हर एक जगह, जहाँ पे हर एक जगह एकदम छोटे से छोटा जो पार्टिकल्स है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, और वहाँ पे पूरा बरसात से क्या हो जाता है? पूरा
लैविश मतलब पूरा क्लीन हो जाता है, वॉश हो जाता है, लैव। और उसके बाद डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और डस्ट लेयर्स जो भी जहाँ पे होता है, डस्ट लेयर्स मतलब जो भी धूल मिट्टी जहाँ पे जमी होती है उनको भी जो रेन है वो साफ कर देती है। लैव का मतलब क्या होता है? टू वॉश। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, latent unborn, and all that in them without me were seeds only, latent and born। only एक ही जगह तक ये जो रेन है वो पहुंचती नहीं है, वो जगह कहाँ पे है? सीड्स के अंदर। सीड्स कहाँ पे होते हैं? सीड्स एक मिट्टी के अंदर क्या होता है? उनको पोता जाता है और उसके बाद वहाँ से क्या स्टीम आता है, फिर उसके वो बड़ा होता है और फिर ब्रांच आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो वहाँ तक यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो स्टीम के अंदर ही जो वाटर है वो नहीं पहुँचता, मगर वो पहुँचता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं पहुँचता ना, मिट्टी के थ्रू वो नीचे जाती है वाटर, है ना। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और लैटेंट का मतलब क्या होता है? जो अंदर अंदर कोई भी चीज़ जो कि हिडन हो या मान लो जो कि अंदर हो वहाँ पे। And forever by day and night I give back life to my own origin, and forever by day and night I give back life to my own origin। और दिन रात मैं बरसात करवाती हूँ और उसके बाद मैं जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ था, जन्म हुआ था, जहाँ से मैं आई थी वहाँ पे मैं दोबारा से पहुँच जाती हूँ। बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे थी का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर को रेन को फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है इसलिए, ठीक है। और लास्ट में जहाँ से वो आई थी वहीं पे वो पहुँचती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और क्या करती है? प्योर करती है, शुद्ध कर देती है, ठीक है। और ब्यूटिफाई मतलब एकदम चकाचक, एकदम मस्त तरीके से कर देती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर सॉन्ग, सॉन्ग को कंपेयर किया जा रहा है रेन से, सॉन्ग को कंपेयर किया जा रहा है बरसात से। और जैसे मान लो एक सिंगर वो गाना गाता है या एक परफॉर्मर वो अपना परफॉर्म करता है कुछ भी, यहाँ पे मैं सिंगर का ही एग्जांपल देना चाहूँगा। एक सिंगर गाना गाता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसको बस गाना गाने से मतलब होता है। और अगर किसी को पसंद आए तो भी ठीक है, अगर किसी को पसंद ना आए तो भी ठीक है। उसको गाना गाने में ही उसको क्या मिलता है? एक आत्मसंतुष्टि उसको मिलती है, ठीक है। और यही उसका रिवॉर्ड है। तो वैसे ही रेन जो है वो शुरू से क्या करती है? वो इवोपरेशन के द्वारा फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है और दोबारा से ऊपर जाके क्लाउड्स में वो कन्वर्ट होके प्रिसिपिटेशन जिसे कहते हैं, जो बरसात जो होती है उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन एक्चुअली में। तो वैसे वो भी ये जो प्रोसेस के द्वारा गुजरती है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे वो बरसात हुई, कहाँ पे नहीं हुई। उसको तो बस इसी में ही संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है कि इस प्रोसेस में वो प्रेजेंट थी, मतलब ऐसा वो कर पाई। मतलब बरसात वो कर पाई, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। रैग्ड और अनरैग्ड डली विथ लव रिटर्न्स, उसको यही करने में, बरसात करने में, मतलब बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, रेनफॉल की मैं बात कर रहा हूँ। रेनफॉल होने में रेनफॉल को ही क्या मिलता है? आत्मसंतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, बहुत ही खुशी आनंद मिलती है, ठीक है, प्रसन्नता प्राप्ति होती है, लाइक दिस। ओके। अब मैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस इसके हैं कुछ मैं शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले आप लिख सकते हो जो रैग्ड है, रैग्ड और अनरैग्ड जो लिखा है इसका मतलब है कि केयर करना, और अनरैग्ड का मतलब होता है अनकेयर करना। मतलब मैंने बताया ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको चाहते हैं कौन उसको नहीं चाहते हैं, बरसात को या मान लो इस सिंगर को, उसको बस अपने काम से मतलब है, बरसात करवाने से मतलब है, होने से मतलब है, किसको क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। या मान लो सिंगर के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूँ
किसको पसंद हुआ ये गाना या नहीं हुआ उसको मायने नहीं लगता, उसको बस गाने से मतलब है। तो वैसे ही बरसात को भी बरसात से मतलब है, हो जाए कहीं पे भी कुछ हो जाए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता तरीके से उसको उसी में ही खुशी मिलती है। अब मैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप भी देख सकते हो, तो आपको रफ आइडिया मिल सकता है कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। देखो क्या है, पहला लाइन जो है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो ये जो सॉफ्ट और ये जो शावर है ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड का जो साउंड है वो आउट होता है, वो इमर्ज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट, उसे कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। और ये जो पहला वाला लाइन में ही ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, ये 3 वर्ड्स, ये एक विजुअल इमेजरी को क्रिएट करता है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, आहिस्ता आहिस्ता जो बूंद है वो ज़मीन पर गिर रही है, ये भी एक क्या क्रिएट कर रहा है, एक इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड में, रीडर्स के माइंड में, ऑडियंस के माइंड में। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विजुअल इमेजरी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट जो द्वितीय लाइन है उसमें क्या लिखा गया है, टू टेल। क्या? टू टेल। ये जो है इसमें आप देख सकते हो कि ट का आवाज आ रहा है, कि मैंने बताया आपको जहां पे ट का या मान लो कॉन्सोनेंट का अगर आवाज क्रिएट हो तो वहां पे हम एलिट्रेशन लगा सकते हैं। तो ये हो गया एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल। क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाओ नीचे, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आई कौन है? रेन है। तो रेन जो है वो पर्सोनिफाइड है, मतलब पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटी दे, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो मैं क्या हूं? मैं कविता हूं इस धरती का, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? मैं कविता हूं इस पूरी धरती का। तो पोएम जो है, पोएम ऑफ अर्थ, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, पहला वाला मैंने बता दिया, ठीक है, आई एम। अब देखो पोएम ऑफ अर्थ जो है इसका क्या मतलब होता है? पोएम ऑफ अर्थ जो है वो मेटाफर है। क्या है? मेटाफर है। एंड द वॉइस ऑफ द अर्थ, और वॉइस दोबारा से क्या है? पर्सोनिफाइड, मतलब पर्सोनिफिकेशन है ये। और जो वॉइस ऑफ द रेन है, जो नाम है, टाइटल जो है, तो वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस इज इटसेल्फ अ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि रेन जो है उसका कोई आवाज, उसका क्या होता है, उसका साउंड हो सकता है, मगर वॉइस जो है वो तो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है ना। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो और समझ सकते हो, मगर अगर यही बात अगर हम बरसात के लिए अप्लाई करें तो ये तो नहीं होगा, अगर मैं इसको रैशनलाइज तरीके से बताऊं। मगर ये पोइटिक वे से अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे इसका ये मतलब बनेगा कि वॉइस जो है वो आवाज किसका? रेन का। तो वो ह्यूमन क्वालिटी हम उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो उस समय पर्सोनिफिकेशन जो है उसका ये एग्जाम्पल होगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? बॉटमलेस सी। देखो, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहां पे क्या हो गया? बॉटमलेस सी। सी का एक, हाँ, हालांकि मानता हूं मैं कि सी बहुत गहरा होता है, टाइटैनिक को भी डुबा दिया, मानता हूं मैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बॉटमलेस होगा। उसका एक क्या होगा? अंत तो है, उसका एक अंत तो है, वो तो इन्फिनाइट तो है नहीं ना, उसका एक अंत है। तो यहां पे लिखा गया है बॉटमलेस, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे अगर वर्ड्स यूज हो यहां पे स्पेशली, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल का यह मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके,
उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई डिसेंड टू लैव द ड्राउट्स, एटम इज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पे डिसेंड लिखा हुआ है, ड का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्राउट्स भी आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है, और दोबारा से आ रहा है एक ही लाइन में। तीसरा जो शब्द है वो क्या है, डस्ट है ना। तो डस्ट जो है वो कॉन्सोनेंट्स, मतलब डस्ट हो गया, उसके बाद ड्राउट हो गया, उसके बाद डिसेंड हो गया। यहाँ पे ड का जो ध्वनि है वो बार बार क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं एंड ऑल दैट इन देम विदाउट। ये जो एंड ऑल दैट इन देम विदाउट, देखो अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्या आ रहा है, एंड, उसके बाद दैट, उसके बाद देम। तो यहां पे भी कॉन्सोनेंट्स आएगा। ठीक है, उसके बाद विदाउट, ये जो 4 वर्ड्स हैं यहां पे आप कॉन्सोनेंट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एंड है, उसके बाद दोबारा से देखो दूसरे लाइन में एंड फॉर एवर। पहला वाला जो है लाइन एंड ऑल दैट इन देम, दूसरा वाला जो है एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट। उसके बाद तीसरा वाला जो लाइन है उसमें क्या लिखा है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो इसमें 3 बार जो है 3 टाइम्स सेम शब्द क्या है वो, ए एंड डी, एंड, वो रिपीट हो चुका है। तो अगर सेम वर्ड अगर रिपीट हो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में या सब्सिक्वेंट लाइंस में, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, उस समय हम एनाफोरा यूज करते हैं। स्पेलिंग क्या है, ANAPHORA। एनाफोरा हम यूज कब करते हैं, जब एक ही शब्द शुरुआत में यहाँ पे है तो ये 3 बार एक ही बार, मतलब एक ही शब्द जो है 3 बार सीरियल वाइज लिखा गया है ना। तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, एनाफोरा। क्लियर? I am not getting into much more complexity in a very simple manner, as simple as water I am trying to offer. Okay, I hope you can drink and have the taste. Fine? Okay. उसके बाद क्या है देखो, लास्ट लाइन जो है रैक्ड और अनरैक्ड है ना, रैक्ड और अनरैक्ड, यहां पे भी कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। उसके बाद लास्ट वाला जो वर्ड है रिटर्न्स, तो रैक्ड, अनरैक्ड और रिटर्न्स, लास्ट जो सेंटेंस है, मतलब लास्ट स्टैंजा का जो लास्ट लाइन है उसमें देख सकते हो रैक्ड और अनरैक्ड, और लास्ट जो वर्ड है वहां पे रिटर्न्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे RR का बार बार यूज हो रहा है ना। तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट्स। क्या यूज करेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, कोई भी राइमिंग स्केल या राइमिंग स्कीम जो है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है फ्री वर्ज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ, और सारे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैंने डिस्कस करा हुआ है। तो कोई डाउट हो तो पूछना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।